چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ ہاللویہ۔ مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کو السلام۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے اور اس وقت کے لیے جو خدا نے ہماری زندگی میں بخشا ہے، تاکہ ہم پھر اکٹھے ہو سکیں اور خداوند کے نام کو جلال دے سکیں۔ تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ہولی سٹی منسٹری کے لیے، اس پلیٹ فارم کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے اس منسٹری کو زمین پر رکھا ہے، اس دنیا میں رکھا ہے، تاکہ اس منسٹری کے تھرو ہم خداوند کے کلام کو دوسروں تک پہنچا سکیں اور خداوند کی بادشاہی کی وسعت میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور ہم خداوند کے حضور میں شکر گزاری کی دعا کریں گے۔ تو میری ریکویسٹ ہے آنٹی نسرین سے کہ وہ خداوند کی شکر گزاری کی دعا کریں۔ ہاللویہ۔ خدا قدوس رب الافواج، تو جو قادر مطلق خدا ہے، تو جو رب الافواج ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ بے شک خداوند تو بھلا خدا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے۔ تو راستے میں خداوند غنی خدا ہے، تو راستے سے بھرا خدا ہے اور لشکروں کے خداوند تو شفقت کرنے میں غنی ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں لشکروں کے خدا۔ ہم خدا اس وقت جب تیری حضوری میں ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، کیونکہ تو ہی قادر مطلق خدا ہے، تو ہی رب الافواج ہے، تو جو اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں پاک ٹھہراتا ہے، ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے۔ بے شک ہم اس قابل نہیں تھے، ہم تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن خداوند تو نے ہمیں وہاں سے نکالا ہے۔ خداوند تو نے ہمیں آزاد کیا ہے، تو نے ہمیں فضل بخشا ہے، تو نے ہمیں چنا ہے کہ ہم تیرے گواہ ٹھہریں۔ اب لشکروں کے خداوند جب تو نے ہمیں چنا ہے خداوند، تو نے ہمیں کھڑا کیا ہے خداوند، تو خداوند تو ہم تیری مدد اور رہنمائی مانگتے ہیں خداوند، ہم تیرے لوگ خداوند تجھ سے مانگتے ہیں خداوند، اپنے لوگ بھی خداوند ہمارے ساتھ مہیا کر لشکروں کے خداوند، اور خداوند ہمیں قوت دے، حکمت دے، قدرت دے خداوند، تاکہ ہم خداوند اور زیادہ بڑھ سکے خداوند، جس کام کے لیے خداوند تو نے ہمیں کھڑا کیا اس کو ہم اچھے طریقے سے کر سکیں لشکروں کے خداوند، تو جو قادر مطلق خدا ہے۔ میں شکر گزاری کرتی ہوں تمام پارٹیسپینٹس کے لیے، تمام لوگوں کے لیے خداوند جو اس پروگرام کو سنتے ہیں خداوند، ان کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ان کے لیے بھی خداوند تیری بلیسنگز کو چاہتے ہیں، ان کے لیے تیری برکت کو چاہتے ہیں۔ ابھی سے خداوند ان کو بھی خداوند تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند، جہاں جہاں بھی خداوند یہ میٹنگ خداوند سنی جائے خداوند، اس میٹنگ کے وسیلہ سے خداوند سب کے گھرانوں میں برکت آئے، لشکروں کے خداوند گواہیاں پیدا ہوں خداوند، اور خداوند تیرے نام کو عزت و جلال ملے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آمین آمین۔ خداوند کی شکر گزاری ہو، ہم خداوند کی پرستش کریں گے۔ تو میری ریکویسٹ ہے آنٹی نصرت سے کہ وہ خداوند کی پرستش کریں۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نا وہ انٹرنیٹ تھوڑا سا سلو جا رہا ہے، اس لیے میرا نا بار بار آف ہو جاتا ہے، پر ایشو کیوں ہے؟ اوکے، ہم گیت گائیں گے 213۔ جیسے آپ نے جوانوں کے بارے میں کہا ہے تو میں گیت گاؤں گی۔ جوانی کے دنوں میں جو خدا کو یاد کرتے ہیں، جوانی کے دنوں میں جو خدا کو یاد کرتے ہیں، مبارک وہ جوان ہے جو مسیح کو شاد کرتے ہیں، فرشتوں سے بھی افضل ہے وہ سب جنت کے وارث ہیں، فرشتوں سے بھی افضل ہے وہ سب جنت کے وارث ہیں، مسیح کے نام پر جو زندگی شاد کرتے ہیں، مسیح کے نام پر جو زندگی شاد کرتے ہیں، جوانی کے دنوں میں جو
खुदा को याद करते हैं। वो मर सकते हैं लेकिन मिट नहीं सकते ज़माने से। वो मर सकते हैं लेकिन मिट नहीं सकते ज़माने से। वो मर जाते हैं पर लाखों जहां बाद करते हैं। वो मर जाते हैं पर लाखों जहां बाद करते हैं। जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं, वो पा लेते हैं काबू दिल की हर धड़कन पे आखिर। वो पा लेते हैं काबू दिल की हर धड़कन पे आखिर। ज़िया बंदे मसीह यसू के कब फरी याद करते हैं। ज़िया बंदे मसीह यसू के कब फरी याद करते हैं। जवानी के दिनों में जो खुदा याद करते हैं। मुबारक वो जवान है जो मसीह को शादी करते हैं। Praise you, Lord Jesus Christ. Thank you. Amen. आमीन, हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो। और जो कि आज हमारा टॉपिक यूथ पे है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। और ज़रूर है कि उनको एनकरेज करने के लिए हम दुआ करें और प्रस्तिश करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है पास्टर फयाज साहब से कि वो खुदा उनकी प्रस्तिश करें। पास्टर फयाज साहब। पास्टर फयाज, हाँ जी। गॉड ब्लेस यू। हम गीत जबूर गाएंगे 91 खुदा दे पार दी छां हेठां जो कोई इंसान रहंदा है। खुदा दे पर दी छां हेठां जो कोई इंसान रहंदा है। खुदा दे पर दी छां हेठां ते ओ आराम पांदा है। मेरी खुदावंद है, मैं हो सब नू आखांगा। पना मेरी खुदावंद है, मैं हो सब नू आखांगा। किला मेरा खुदावंद है, मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उसे रखांगा। किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उसे रखांगा। तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी। हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी।
ਡਰਾਵੇਗਾ ਨਾ ਦਿਨ ਦਾਤੀ, ਡਰਾਵੇਗਾ ਨਾ ਦਿਨ ਦਾਤੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਅੰਧਿਆਰੀ। ਪਾਲੀ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਵੇਗੀ, ਪਾਲੀ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਹੱਥ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਲ ਤੇਰੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਲ ਤੇਰੇ, ਪਾਲੀ ਫਿਰ ਨਾ ਆਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਵੇਖੇਗਾ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਵੇਖੇਗਾ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੰਭ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। आमीन आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी हो, हम प्रस्तुत में आगे बढ़े और शोभ के साथ खुदा की प्रस्तुत करें। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। मुंजी का जमाने में ये नाम प्यारा है, मुनजी का जमाने में ये नाम प्यारा है। छेड़ेंगे वही नगमे यसू के इशारों पर, छेड़ेंगे वही नगमे यसू के इशारों पर। तकलीफों का क्या कहना, तकलीफों का क्या कहना, मरना भी गवारा है। तकलीफों का क्या कहना, मरना भी गवारा है। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। कंधों पे सलीबें हो, इंजील हो हाथों में, कंधों पे सलीबें हो, इंजील हो हाथों में। दुनिया को बता देंगे, दुनिया को बता देंगे यसू ही कफारा है। दुनिया को बता देंगे यसू ही कफारा है। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। हम खून का हर कतरा, हंस खून का हर कतरा, हंस हंस के बहा देंगे। हम खून का हर कतरा हंस हंस के बहा देंगे। दिल उससे मुनव्वर है, एहसान ये बारा है।
दिल उससे मुनव्वर है, एहसान ये बारा है। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। यूं में तेरी अजमत, यूं में तेरी अजमत, हशमत है फरिश्तों में, नबियों में तेरी अजमत, हशमत है फरिश्तों में। आंखों का वो तारा है, आंखों का वो तारा है, मरियम का दलारा है। आंखों का वो तारा है, मरियम का दुलारा है। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। नजी का जमाने में ये नाम प्यारा है। आमीन। हालेलुया। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है, मुनज्जी का ज़माने में ये नाम प्यारा है। तो आज की जो यूथ है उसके लिए मैसेज है कि हमें खुदावंद ने अपने काम के लिए बुलाया है और इंजील का फैलाव करना हमारा काम है, और खुदावंद के काम के लिए हमें आगे बढ़ना है। खुदावंद की निजात का मुकाशफा दूसरों तक लेके जाने में हमें ज़रूरत है कि हम आगे बढ़ें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर सिद्दीक साहब से कि वो खुदावंद की शुक्रगुजारी की दुआ करें। उसी यीशु में स्वर्ग आसमानी बाप, नहायत अदब के साथ हलीमी फरोतनी का खारी के साथ आपके हुजूर में झुकते और आपको सजदा करते हैं, क्योंकि आप ही सजदों के लायक खुदा है। आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर इंसानों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके सामने झुके और सजदा करे। एक ही नाम है, यीशु नाम है, जिसके सामने हर एक घुटना झुकता है, खा आसमानियों का जमीनियों का, जिंदगी के खालिक और मालिक के वो पाक खुदा। आज की खुदा इस मीटिंग के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा आपने फजल बख्शा कि हम फिर से इकट्ठा होकर खुदा पाक खुदा आपकी वर्शिप करें, आपके नाम को इज्जत और जलाल दें, आपके नाम की वडियाई करें, आपके नाम को धन के मुबारक के खुदा। और खुदा की सारी इबादत के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज जो टॉपिक रखा गया है मालिक पाक खुदा, फजल बख्श कि खुदावन पाक खुदा हम नौजवान नस्ल को आपके पास ला सके खुदा, हम नौजवान नस्ल को टीच कर सके मालिक पाक खुदा, हम उनको तनबीह कर सके आपके कलाम के वसीला से मालिक, उनको सिखा सके मालिक पाक खुदा। हम जितने पार्टिसिपेंट है जहाँ के भी मालिक पाक खुदा, फजल बख्श के नौजवानों पर खुदा तवज्जो करे, नौजवानों पर ध्यान करे, क्योंकि आज अबलीस नौजवानों ही को इस्तेमाल कर रहा है और खुदा को भी नौजवानों ही की जरूरत है मालिक। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं फजल बख्श, हम बहुत सारे नौजवानों को आपके पास लाने वाले ठहर सके। इस प्लेटफॉर्म के वसीला से, अपनी अपनी खिदमत के वसीला से मालिक इस काम को हम सर अंजाम देने वाले ठहरे, और खुदा सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी ऑनर आपके नाम को मिले मालिक पाक खुदा। आज जब तेरी बेटी खुदा इस टॉपिक को लेकर खुदा पाक खुदा खुदा के कलाम से सिखाने वाले हैं, तो मिन्नत करते हैं खुदा उसका मुंह बन जाना, बड़ी मदद रहनुमाई करना, बात करना, तो सारा जलाल आपके नाम को मिले, उसी के नाम में आमीन। हम एक कोर्स जाएंगे और उसके बाद हम खुदा के नाम को और जो यूथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो हम अपने आप को तैयार करेंगे इस बात के लिए। हालेलुया।
सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर फियाज साहब से कि वो खुदा की खादमा के लिए और इस सारी डिस्कशन के लिए दुआ करें कि खुदावन का रूह कुद्स में गाइड करे, ताकि हम खुदावन की मर्जी को मालूम करें और उसकी मर्जी के मुताबिक हम खुदावन का काम कर सकें। आए हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स, खुदावन मेरा दिल तेरी शुक्र से भरा है आज शाम इस वक्त के लिए जो तूने हम सब की जिंदगी में दिया, कि हम तेरे नाम को मुबारक करें। खुदा इस वक्त हम जबकि कलाम तेरी आवाज सुनने वाले हैं, मैं तेरी खादमा को खुदावन तेरे हैंड ओवर करता हूँ। उसकी जुबान का जिम्मा ले, उसके अल्फाज की तरतीब दे, तो अपना पाक रूह उस पर अंडेल यीशु, वो ना बोले बल्कि तू उसमें से होके बोले। खुदावन तेरे पाक कलाम में लिखा है तो अपने फरिश्तों को हवाएं और खादमों को आग के शोले बनाता है। अपनी खादमा को जो आज तेरे मुंह की बातें हमें सुनाने वाली है, आग के शोला की तरह इस्तेमाल कर यीशु, पाक रूह से भर दे। आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए हो, जितने लोग इस चैनल को देखें उनकी जिंदगी के लिए हो, मेरे घराने के लिए हो, उनके घरानों के लिए हो, और जितने लोग इस वक्त हाजिर जमात जूम मीटिंग में बैठे खुदावन, ये हम सब के लिए खुदावन तेरा कलाम खुदावन तासीर रखता है। तेरा कलाम बेअसर नहीं लौटेगा यीशु नाम से। खुदावन आज के कलाम के वसीला से 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए यीशु नाम से। दिलों पर असर करे, जहनों पर असर करे, जिंदगियों पर असर करे, जिंदगियां तब्दील हो खुदावन। और खास तौर पर जबकि जिक्र हुआ है आज जवानों के लिए, नौजवानों के लिए खुदावन, देख खुदावन नौजवानों के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं और खुदावन उनके लिए दुआ करते हैं कि वो तेरी सलीब के नीचे आए, खुदावन तेरे तख्त के सामने आए, तेरी प्रेजेंस में आए, तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। खुदावन देख खुदावन तू नौजवानों को जो कौम का पिलर और सरमाया होते हैं खुदावन,
ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں خدا کہ وہ تیرے تخت کے سامنے آ جائیں، تیری خدمت کرنے والے ہو جائیں۔ جو آ چکے ہیں ان کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، جو موجود ہیں ان کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ خدا جو رہ گئے ہیں، خدا تیرا پاک روح ان کو بھی کھینچے، تیرا پاک روح ان کی زندگیوں میں بھی کام کرے، وہ بھی تیرے جلال کو دیکھیں۔ پاک روح ان کی زندگیوں میں جلالی کام کر، تاکہ وہ خود خدا تیری آواز کو سن کر تیری طرف چلے آئیں۔ یسوع ناصری دیکھ خدا تیری خادمہ کے لیے جب بھی ہم کلام ہوگی، خدا ہم سے ہم کلام ہوگی، تیرا کلام سنائے گی، تیرے منہ کی باتیں سنائیں گی، ہم تیری آواز کو سنیں گے۔ یسوع ناصری ہمیں توفیق دے، ہمیں ایمان کی مضبوطی دے کہ ہم تیری آواز کو سنیں۔ یسوع ناصری اپنی خاطروں کو بڑی برکت دے، مانگتے ہیں یسوع کے نام سے، آمین۔ آمین۔ اب وقت ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں، تو میں ریکویسٹ کروں گی آنٹی نسرین اختر سے کہ وہ آئیں اور خدا کے کلام کو شیئر کریں۔ ہلیلویا۔ مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور خداوند کا فضل ہمیشہ ہم سب پر اور تمام گھرانوں پر بنا رہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں اور ساری عزت ہم خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو دیتے ہیں، کیونکہ وہی قدرت، حشمت اور بزرگی کے لائق ہے۔ وہی ہماری سپر اور ہماری ڈھال ہے۔ وہی ہمارا یہوہ پاک خدا یہوہ یری ہے، جو ہمیں قوت دیتا ہے، جو ہمیں قدرت دیتا ہے۔ سب سے بڑھ کر خداوند ہمیں اپنی حکمت سے بھرتا ہے۔ ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ اس کی حکمت ہی سب کچھ ہے اور اس کی حکمت سے ہی ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں حکمت، اپنی حکمت کا ہمیں مالک بنایا، ہمیں اپنی حکمت دی ہے، اس میں سے اس نے کچھ حصہ ہمیں دیا ہے تاکہ ہم زندگی میں رہ کر جو ہے اس کے ان کاموں کو، ان باتوں کو، اس کلام کو دوسروں سے بیان کر سکیں، اس حکمت کو استعمال کر سکیں، اور تاکہ دوسرے جو ہیں اس کلام کے وسیلہ سے، اس روشنی کے وسیلہ سے، حکمت کے وسیلہ سے جو ہے وہ برکت پائیں اور زندگیاں تبدیل ہوں، ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ اس سے پہلے کہ میں ہم کلام کو سٹارٹ کریں، ایک بڑا زبردست گیت ہے، میں وہ تھوڑا سا ہم گانا چاہیں گے، تو پھر اس کے بعد میں ہم کلام کرتے ہیں نوجوانوں کے بارے میں۔ تجھے خداوند نے چن لیا ہے، تجھے خداوند نے چن لیا ہے، عظیم رتبہ عطا کیا ہے، عظیم رتبہ عطا کیا ہے، تجھے خداوند نے چن لیا ہے۔ تو ہر قدم پر دیے جلائے، سیاہیوں کے نشان مٹائے، تو ہر قدم پر دیے جلائے، سیاہیوں کے نشان مٹائے، کہاں میں یسوع کی تو ضیا ہے، جہاں میں یسوع کی تو ضیا ہے، عظیم رتبہ عطا کیا ہے، عظیم رتبہ عطا کیا ہے، تجھے خداوند نے چن لیا ہے۔ انجیل یسوع کی تو سنائے، تو مفلسوں کو گلے لگائے، انجیل یسوع کی تو سنائے، تو مفلسوں کو گلے لگائے، ہمارے ہونٹوں پہ یہ دعا ہے، ہمارے ہونٹوں پہ یہ دعا ہے، عظیم رتبہ عطا کیا ہے، عظیم رتبہ عطا کیا ہے، تجھے خداوند نے چن
है। वफा के रास्ते पे चलते रहना, तू आगे आगे ही बढ़ते रहना। वफा के रास्ते पे चलते रहना, तू आगे आगे ही बढ़ते रहना। कठिन अगर से ये रास्ता है, कठिन अगरचे ये रास्ता है, अजीम रुतबा अता किया है, अजीम रुतबा अता किया है। तुझे खुदावन ने चुन लिया है। आमीन। हमारी दुआ है नौजवान नस्ल के लिए। बेशक ये रास्ता बहुत ही मुश्किल है, बेशक ये रास्ता बहुत ही कठिन रास्ता है, बेशक ये रास्ता आजमाइश और दुख और तकलीफों से भरा है, लेकिन हमें नौजवान नस्ल को आगे लेकर आना है। हमें उसकी जो हौसला अफजाई करनी है, हमें उसकी रहनुमाई करनी है, हमें उसको तारीकियों में से निकालना है, हमें उनको बचाना है, हमें उनको खुदावंद के लिए तैयार करना है, ताकि वो खुदावंद की कलीसिया के लिए खड़े हों, ताकि वो खड़े हों कि वो दूसरों के लिए मशले राह हों, वो खड़े हों ताकि वो खुदावंद के कलाम को दूसरों तक फैला सके, दूसरों तक पहुंचा सकें। हमें अपने अपने दायरे से बाहर आना है, हमें अपनी अपनी सोच ख्याल को से बाहर आकर हमें दूसरों के लिए काम करना है, हमें दूसरों को अपने साथ मिलाकर चलना है, हमें वफादारी से एक दूसरे के साथ चलना है, हमें कमजोरों को जो है वो दलेरी देनी है, हम कमजोरों की कुवत बनना है, हमें हिम्मत बनना है, हमें एक दूसरे का बाजू पकड़ना है, ताकि हम अपने लोगों के लिए, जो पिसे हुए लोग हैं, जो पसमानदा लोग हैं, जो मुफलिस हैं, जो जिनको मदद की जरूरत है, जिन जिन पर अभी तक खुदा यीशु मसीह का प्यार नहीं पहुंचा, जिन तक खुदा यीशु मसीह की नजात नहीं पहुंची, हमें उन तक पहुंचना है। खुदावन तू इस कलाम के वसीला से, खुदावन तू आज नौजवान नस्ल से कलाम कर, नौजवान नस्ल से बात कर, नौजवान नस्ल को इस बात के लिए तैयार कर। खुदावन खुदावंद इस बोझ को जो तूने हमें दिया है खुदावंद, इसके लिए तू हमारी रहनुमाई कर खुदावंद, और अपने कलाम को नाजिल कर। मैं ना बोलूं बल्कि खुदावंद तू आज खुद कलाम कर। पाकरू आ हमारी मदद रहनुमाई कर। पाकरू आ तू खुद कलाम कर। पाकरू मैं तुझे वेलकम करती हूँ, और पाकरू मैं अपना आप, अपनी जुबान, अपने होंठ, अपने गला, अपना सब कुछ पाकरू मैं तेरे पाक हाथों में देती हूँ और तेरे कंट्रोल में देती हूँ, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम आज बात करें नौजवान नस्ल की, तो नौजवान नस्ल के लिए जो है हम ज़बूर पढ़ेंगे 119 ज़बूर की, उसकी हम 9 आयत से लेकर हम जो है उसकी 16 आयत मुकद्दसा तक पढ़ेंगे, जिसमें ये लिखा है कि अगर मारिया जो है ये ज़बूर हमें पढ़ने में हमारी रहनुमाई करे। ज़बूर 119 उसकी 9 आयत से लेकर 16 आयत मुकद्दसा तक। जी 9 आयत से 16 आयत तक। 16 जी ज़बूर नंबर 119 उसकी 9 आयत से 16 आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूँ, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ऐ खुदावन तू मुबारक है, मुझे अपने आइन सिखा। मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा अहकाम को बयान किया। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। मैं तेरे आइन में मसरूर रहूंगा, मैं तेरे नाम को ना भूलूंगा। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाएं। हम सबको बरकत मिले। आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जवान अपनी रविश को किस तरह से पाक रखे। ये सवाल है कि नौजवान जो है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि नौजवानी का आलम जो है, जवानी का आलम एक ऐसा आलम होता है जो भटकने का आलम होता है।
جس میں جو ہے ابلیس جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرتا ہے، جس میں جو ہے انسان جو ہے وہ بھٹک سکتا ہے، نوجوان بھٹک سکتا ہے۔ تو خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک رکھ سکتا ہے، کس طرح سے وہ ابلیس کے شکنجوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کس طرح سے وہ گناہ کی جو شہوت ہے اسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کس طرح سے وہ اپنی روشوں کو پاک رکھ سکتا ہے۔ تو پھر آگے وہ یہ بات کرتا ہے کہ تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے، یہاں پر وہ خود ہی جواب یہ دیتا ہے کہ خدا کا کلام پر نگاہ رکھنے سے جو ہے نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ اس جو یہ جو 119 زبور کا یہ جو حصہ ہے 9 آیت سے لے کے 16 آیات مقدسہ تک، اس میں جو اس کا جو مرکزی خیال ہے، جو اس کا سینٹرل تھیم ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کے کلام میں قوت ہے، خدا کے کلام میں قدرت ہے، خدا کے کلام میں اتنی قوت ہے کہ وہ انسان کو جو ہے وہ گناہوں سے نکال سکتی ہے، وہ انسان کو اپنی روشیں پاک رکھنے سے جو ہے وہ ان میں مدد و رہنمائی کر سکتی ہے۔ اور نوجوان نسل جو ہے جب خدا کے کلام پر نگاہ رکھتا ہے، جب خدا کے کلام کو دیکھتا ہے، خدا کے کلام پر غور کرتا ہے اور اسے اپنے دل میں رکھتا ہے، تو پھر جو ہے وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے، وہ پھر اپنی روش کو پاک اور صاف رکھ سکتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کے کلام کا جو ہے کو میں نے اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کری۔ جب نوجوان نسل جو ہے خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھتا ہے اور اس پہ میڈیٹیٹ کرتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، اور اگر کبھی وہ بھٹکنے بھی لگے تو خدا کا کلام جو اس کے دل میں بسا ہوا ہے وہ اسے اس بات کی تنبیہ کرتا ہے، وہ اسے اس بات سے روکتا ہے، اور وہ کلام اسے یاد دلاتا ہے کہ دیکھ کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، بدی نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، بدکاری نہیں کرنی، حرام کاری نہیں کرنی، بت پرستی سے بچنا ہے۔ یعنی یہ ہم جو ہے نوجوان نسل اور ہم سب جب خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہیں تو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں گناہ سے بچاتا ہے، گناہ سے ہمیں بچنے کی جو ہے وہ قوت اور قدرت دیتا ہے، اور خدا کا پاک روح جو ہے جو ہمارے اندر بستا ہے وہ ہمیں پھر خدا کا کلام یاد دلاتا ہے۔ اسی طرح سے جو نوجوان نسل ہے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پاک رکھ سکتی ہے، نوجوان نسل کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے جو ہے روشوں کو پاک رکھ سکتی ہے۔ تو زبور نویس یہ کہتا ہے کہ وہ خدا کے کلام پر غور کرنے سے، خدا کے کلام پر نگاہ رکھنے سے جو ہے اس بات پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھ سکتا ہے۔ صرف ایک ہی واحد راستہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کی، خدا کے کاموں کی، خدا کے احکامات کی فرمانبرداری کرے۔ خدا کی احکامات کی فرمانبرداری میں ہی اس کی نجات ہے، خدا کے کلام کے فرمانبرداری میں ہی اس کی بقا ہے، اور خدا کے کلام کی فرمانبرداری سے ہی وہ بچ سکتا ہے، وہ اس تاریکی سے نکل سکتا ہے جب وہ پورے دل سے خدا کو ڈھونڈتا ہے، جب وہ پورے دل سے خدا کے کلام پر غور کرتا ہے، جب وہ پورے دل سے خداوند سے محبت رکھتا ہے اور پھر اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اور پھر وہ کبھی بھی اس سے پھرتا نہیں ہے، کبھی بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتا، کبھی بھی اس سے وہ جو ہے وہ روگردانی نہیں کرتا، بلکہ خدا کے کلام کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتا ہے، وہ زندگی گزارتا ہے۔ آج کی نوجوان نسل جو ہے، ہمارا جو آج کا پیغام ہے، آج کا جو میسج ہے ان کے لیے یہی ہے کہ وہ خدا کے کلام کو اپنے دل میں بسنے دیں، وہ اس زبور کے مطابق خدا کے کلام پر غور کریں، خدا کے کلام کے حکموں پر عمل کریں، اور خدا کے کلام پر غور کرنے سے ہی وہ اپنی روشوں کو پاک رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی نجات کو حاصل کریں۔ جیسے کہ سسٹر نصرت نے گایا کہ جوانی کے دنوں میں جو خدا کو یاد کرتے ہیں، بڑھاپے میں تو ہر شخص جو ہے وہ خدا کو قبول کر لیتا ہے۔ بڑھاپے میں تو ہر شخص جو ہے خداوند کی طرف لوٹ آتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی ساری چیزوں سے فارغ ہو جاتا ہے، دنیا کی ساری آرام و آسائشوں سے فارغ ہو جاتا ہے، تمام خواہشات سے فارغ ہو کر تمام دنیاوی خواہشات اس کے اندر سے مٹتی جاتی ہیں۔ جب وہ مٹ جاتی ہیں تو پھر ایک ہی چیز اس کے پاس رہ جاتی ہے، پھر اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اب تو میں کبھی بھی اس دنیا سے جانے والا ہوں، کبھی بھی میں جا سکتا ہوں، اب تو میری اتنے سال عمر ہو گئی ہے، اب تو مجھے پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ اکثر ہم اپنے بزرگوں کو یہ سنتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا بلاوا کب آ جائے، پتہ نہیں کب ہم چلے جائیں۔ بے شک وہ 10-20 سال اور جی لیں، لیکن وہ کہتے یہی رہتے ہیں، لیکن پھر ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور وہ پھر
खुदावन की तरफ आ जाते हैं, खुदावन में अपना दिल लगा लेते हैं। लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक खुदावन की निगाह में ये बड़ी ही अच्छी बात है कि एक नौजवान जो है वो खुदावन की तरफ पलटे, वो अपनी जो बुरी रवशें हैं उसको छोड़कर खुदावन की तरफ जब वो पलटता है तो खुदावन के लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं होती। और वो शख्स, वो नौजवान जो अफजल है, खुदा की नजर में उसकी बड़ी कदर है, जो जवानी के आलम में जो है खुदावन के पास आता है, जो जवानी के आलम में अपने आप को देता है। हिकमत की किताब है सुलेमान बादशाह की, वो खैर इसमें नहीं है लेकिन कैथोलिक बाइबल में हिकमत की किताब सुलेमान बादशाह की, उसमें वो एक बात करता है कि उसमें ये बात करता है कि जो बुजुर्गी जो है वो इसमें नहीं है कि इंसान 100 साल जिए, बुजुर्गी इसमें नहीं है कि इंसान 110 साल का होकर मरे या बहुत ज्यादा लंबी उम्र पाकर जो है वो मरे। वो कहता है कि बुजुर्गी इस बात में है, बेशक वो 40 साल जिए, 50 साल जिए, कि वो खुदावन की हिकमत के साथ जिए। जब खुदावन की हिकमत के साथ एक नौजवान जीता है और नौजवान अपनी जिंदगी बसर करता है और उस हिकमत को अपनी जिंदगी में वो एंजॉय करता है और उस हिकमत के मुताबिक वो सारे फैसले करता है, तो बुजुर्गी इस बात में है। बुजुर्गी उम्र के दराजी में नहीं है, बुजुर्गी उम्र के ज्यादा होने में नहीं है, बुजुर्गी खुदा की हिकमत आपके अंदर होने में है कि जब खुदा की हिकमत आपके अंदर है तो आप बुजुर्ग हैं। बेशक आप इस दुनिया से 20 साल की उम्र में चले जाएं, 30 साल की उम्र में चले जाएं, 40 साल की उम्र में चले जाएं, तो इसका मतलब है कि आपकी उम्र दराज है, आप उम्र दराजी से आपने वफात पाई है। यानी आपने 40 साल भी जो जिए हैं वो भी आपने भरपूर खुदावंद में जिए हैं, आपने एक भरपूर जिंदगी गुजारी है जो खुदावंद में इत्मीनान और शादमानी पाई है और उसकी हिकमत से आपने गुजारी है। तो खुदावंद की हिकमत के साथ, खुदावंद की शादमानी के साथ 40 साल 50 साल भी बहुत हैं, वो भी उम्र की दराजी कहलाती है। तो इसलिए ज़बूर नवीस कहता है कि खुदावंद के कलाम पर अमल करने से जो है एक नौजवान जो है वो अपने आप को बचा सकता है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि यर्मिया की किताब में लिखा है कि उसके 6 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि किस तरह से जो है खुदावंद कहता है कि अपने आप को इंसान जो है, उसका 6 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि रास्तों पर खड़े हो और देखो और पुराने रास्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राह कहाँ है, उसी पर चलो और तुम्हारी जान राहत पाएगी। और खुदावंद के कलाम में लिखा है पर उन्होंने कहा कि हम उस पर ना चलेंगे, लेकिन खुदावंद के कलाम में खुदावंद ये खुद फरमाता है यर्मिया नबी की मार्फत कि आप खुदावंद के रास्तों पर खड़े हो और फिर पूछो, कि यानी कि बुजुर्गों से पूछो जो उस वक्त के उस वक्त उस जमाने के आलम है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हिकमत से भरे लोग हैं, आप उनसे पूछो, उनसे मशवरा लो कि कौन सी राह जो है वो जिंदगी की तरफ जाती है, कौन सी ऐसी राह है, कौन सी ऐसी राह है जो जिंदगी की तरफ हमें लेकर जाती है, तो फिर हम राहत पाएंगे, फिर हमारी जान को राहत मिलती है। खुदा ये चाहता है कि हम जो अपनी राह को चुन लें, अपनी राह का फैसला कर लें कि हमें किस राह पर चलना है, हमें किस राह को अपनाना है, और फिर हम अपने उन लोगों के साथ जो खुदा के कलाम से भरे हुए हैं, हम उनके साथ चलें, हम उनसे पूछें और उनसे पूछ कर जो है वो हम चलें और राह का इंतखाब करें कि हमें किस राह पर चलना है, और फिर हम उस राह पर चलें जो खुदावंद की तरफ से हमें बताई गई हो, जो खुदावंद के बंदों के वसीला से हमें बताई गई हो, हम उस राह पर चलें और अपने आप को बचाएं। तभी हमारी जान जो है वो राहत पाएगी, तभी हमारी जान जो है वो नजात पाएगी। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि इंसान अगर 100 साल जी ले, 110 साल भी जी ले, 120 साल भी जी ले, या इससे ज्यादा तो कोई भी नहीं जी सकता, लेकिन यह है कि अगर वो खुदावंद में नहीं है तो वो उम्र की दराजी नहीं है, और ना ही वो जिंदगी राहत में है, ना ही वो भरपूर जिंदगी है, ना ही वो कसरत की जिंदगी है। बेशक हम 40 साल जिए, 50 साल जिए, 60 साल जिए, लेकिन अगर खुदावंद में है और हमने उस राह को चुना है जो हमें राहत देती है, तो हम उसी राह पर चलें, तो हमें जिंदगी में भी राहत मिलेगी और आने वाली जिंदगी में भी हम राहत में रहेंगे, हम आराम में दाखिल होंगे, इसलिए कि हमने खुदावंद में गुजारा है।
खुदावंद की हिकमत के साथ हमने गुजारे हैं। इसलिए उम्र के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में खुदा की हिकमत होना, नौजवान नस्ल में भी खुदा की हिकमत होना और उसके मुताबिक चलना ही हमारी राह को, हमारी जिंदगी को, हमारी जान को राहत दे सकती है। इसी तरह से हम याकूब के खत में उसके पहले बाब उसकी 21 आयत में हम पढ़ते हैं कि उसमें लिखा है, इसने सारी नजासत और बदी के फुजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को नजात दे सकता है। तो मेरे अजीजों, ये जो हमने ज़बूर 119 पढ़ा है, उसका जो सेंट्रल थीम मैंने बताया कि उसका जो मरकजी मकसद, जो मरकजी ख्याल है, वो ये है कि खुदा का कलाम ही सब कुछ है। खुदा का कलाम ही हमें बुरी रवैयों से बचा सकता है। खुदा का कलाम ही हमें गुनाह से दूर रख सकता है। खुदा का कलाम ही हमें नजात दे सकता है। खुदा का कलाम ही हमें बदी से बचा सकता है, बदकारी से बचा सकता है, हरामकारी से बचा सकता है। इसलिए याकूब भी ये बात करता है, अपने खत में ये बात करता है कि हमें जो है हर किस्म की नजासत, हर किस्म की बदी को अपने से दूर करना है और खुदा का कलाम जो है उसको हमें हलीमी से अपने अंदर कबूल करना है। बड़ी ही वफादारी से उस कलाम को हम अपने अंदर लें। बेशक वो कलाम हमें जो है वो हमें सरजंश करे, बेशक वो कलाम हमें तनबीह करे, बेशक वो कलाम हमें जो है वो हमें डांटे, हमें ये लगे कि वो कलाम हमें तनबीह कर रहा है, तो हमें उस कलाम को बड़ी हलीमगी से कबूल कर लेना चाहिए जो हमारे दिलों में बोया गया है, ताकि हमारी रूहें जो हैं वो नजात हासिल कर सके, ताकि हम अपनी रूहों को बचा सके, ताकि हम अपनी उस आराम में दाखिल हो सके, उस अब्दी जिंदगी में दाखिल हो सके जिस मकसद के लिए हम बुलाए गए हैं, जिस मकसद के लिए जो है वो हमें यहाँ दुनिया में जो है वो भेजा गया है। हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है कि हम अपनी निजात को हासिल करें। लेकिन अगर हम सारी दुनिया हासिल कर लें, जैसे कलाम में लिखा है कि इंसान अगर सारी दुनिया भी हासिल कर ले और अपनी जान खो दे तो उसे क्या फायदा? उसे कुछ फायदा नहीं है। लेकिन अगर हमने अपनी रूह को बचा लिया है तो बेशक हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हमने ये सब कुछ यहीं छोड़ जाना है, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाना। लेकिन हाँ, कम अज कम अपनी रूह को तो हम बचा के जाएं, अपनी हमेशा की जिंदगी को तो हम अपने कब्जे में करके जाएं, अपने ईमान की अच्छी कुश्ती तो हम इस दुनिया पर लड़ के जाएं। और ये एक दुनिया जो है वो एक ऐसा वो रेसलिंग का वो अखाड़ा है जिसमें ये हम लोगों को रेसलिंग करनी पड़ती है, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ना पड़ती है और नौजवान नस्ल को तो खास तौर पर लड़नी पड़ती है, क्योंकि अबलीस जो है वो नौजवानों पर हमला करता है। वो अबलीस जो है नौजवानों को जो है वो पकड़ता है, क्योंकि वो पता है कि वो शहज़ोरी हैं। क्योंकि जैसे कि लिखा है कि जवानी का जो औलाद है वो शहज़ोरी के फल हैं, और हम ये जानते हैं कि जवान औलाद जो है वो माँ बाप के लिए जो है वो एक शहज़ोरी के बराबर है, एक कुव्वत के बराबर है, एक ताकत के बराबर है। और इसलिए जो अबलीस है वो उन पर हमला करता है। अबलीस हम पर हमला नहीं करता, हमारी औलाद पर हमला करता है, हमारी औलाद को अपने कब्जे में करना चाहता है। इसलिए जो है हमें यूथ को बचाना है, यूथ को बचाने के लिए काम करना है, क्योंकि यूथ ही हमारी कौम का मवार है, यूथ ही सब कुछ है, जो कि हमारे मजबूत चट्टान और मजबूत सतून की तरह हैं, जिन पर जो है हमारी कौम जो है वो भरोसा कर सकती है। जिस तरह से कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए है, और इसी तरह से नौजवान नस्ल जो है वो इस जमीन पर खुदावंद यीशु मसीह की नुमाइंदगी करती है। उसे खुदावंद का नुमाइंदा बनाकर इस जमीन पर भेजा गया है। तो जब हम उनको इस चीज के बारे में बताएं, उनके इस बात के बारे में सिखाएं और उनको ये एहसास दिलाएं कि उन्होंने ये काम करना है और जिस मकसद के लिए खुदावंद ने उनको खड़ा किया उस मकसद को वो पूरा करें, अपने आप को गुनाहों से दूर करें, अपने आप को पाक करें। और ज़बूर 119 में भी मतलब इसमें यही है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ऐ खुदावंद तू मुबारक है, मुझे अपने आइन सिखा। मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा अहकाम को बयान किया है। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। यानी जब हम खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं, खुदावंद के आइन और कवानीन को सीख जाते हैं, तो हमारी वो शादमानी हमें वो मिलती है, वो इत्मीनान हमें मिलता है जो दुनिया को दौलत से मिलती है, लेकिन हमें दौलत से नहीं, खुदा के अहकामात पर अमल करने से हमें मिलती है। और मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा और मैं तेरे आइन में मसरूर रहूंगा
मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। ये नौजवान का वादा है खुदा से कि मैं तेरे आइन को नहीं भूलूंगा, मैं तेरे कवानीन पर अमल करूंगा, मैं तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। और ये नौजवान नस्ल, आज नौजवान नस्ल के लिए ये खास पैगाम है कि किस तरह से हम अपनी रविश को, जो गुनाहों में डूबे हुए हैं, बेशक उनके जहन में ये सवाल आता होगा, बेशक वो अपने आप को इसमें से निकालना चाहते होंगे, बेशक वो इस दलदल से अपने आप को निकालना चाहते होंगे, नजात का कोई रास्ता ढूंढते होंगे, लेकिन उन्हें मिलता नहीं होगा, उन्हें मिल नहीं रहा होगा। तो उन सब नौजवानों के लिए जो खुदावंद से दूर हैं, जो खुदावंद से दूर होकर वो तारीकियों में है, वो पस्तियों में है, वो गुमनामियों में है, वो माशी बंधनों में है, वो नशे की लानतों में है, हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि खुदावंद के कलाम को अपने दिल में बसा लो, खुदावंद के कलाम को अपने दिल में रख लो, ताकि आप खुदावंद के कलाम के अपने दिल में रखने से आप गुनाह ना कर सको, क्योंकि खुदावंद का कलाम आपको बचाता है। खुदावंद के कलाम में कुव्वत है, खुदावंद के कलाम में कुदरत है कि वो हमें बचाता है, वो हमें कुव्वत देता है, वो हमें गालिब आने का फजल बख्शता है, वो हमें गलबा दिलाता है गुनाह पर, तारीकी पर और तारीकी की सारी कुव्वतों पर, वो हमें गालिब आने का फजल बख्शता है। तो नौजवान नस्ल के लिए आज ये पैगाम है कि खुदावंद के कलाम को अपने दिल में रख लें ताकि उसके खिलाफ गुनाह ना कर सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। हमें हमें खुदा की शुक्रगुजारी है उसके कलाम के लिए। और जैसा कि हमने कलाम में से सीखा है कि खुदा के कलाम पर अमल करने से, उसके कवानीन पर अमल करने से हम आज़ाद हो सकते हैं, बहाल हो सकते हैं। और ज़रूर है कि हम खुदावन के कलाम को अपने दिलों में जगह दें ताकि उसके खिलाफ गुनाह ना कर सकें, खुदावन के खिलाफ गुनाह ना कर सकें। तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे उसके कलाम के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है शोबल से कि वो खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करें खुदा के कलाम के लिए। आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, जो बुलंद व बाला है खुदा, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है खुदा। और यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी खादमा के लिए खुदा, जो तेरी बंदी ने हमें आज का कलाम पेश किया। यीशु के नाम में खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु के नाम में फजल बख्श खुदा कि हम इस कलाम के पैरोकार रह सकें खुदावंद। और यीशु के नाम में अपनी बंदी को और कसरत से बरकत कर दे खुदावंद, ताकि खुदा ऐसे ही खुदावंद तेरे लोगों में तेरे कलाम की अंजील की मुनादी करती रहे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता रहे खुदा। छू और बरकत दे, मसीह यीशु के खूबसूरत नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन। जी अभी वक्त है कि हम अपनी गवाही को शेयर करें। अगर किसी के पास कोई टेस्टिमनी है तो वो शेयर कर सकता है। अगर कोई शेयरिंग करना चाहता है तो करें। और अपनी दुआया दरख्वास्त भी अपनी खुदावन के हुजूर में रखेंगे, पहले भी जो हमने रखी हुई हैं। और स्पेशली हम दुआ करेंगे नौजवानों के लिए, यूथ के लिए, क्योंकि दुनिया के जो हालात हैं, माशरा ख़राब है, लेकिन खुदावन का हाथ है जो उसके लोगों को बचाता है। और ज़रूर है कि हम दुआ करें इस बात के लिए कि खुदावन नौजवानों को उठा खड़ा करे, नौजवानों की वजह से खुदावन बहाली लेकर आए। और स्पेशली कलीसिया को इस्तेमाल करे, चर्च को इस्तेमाल करे इस काम के लिए, ताकि वह नौजवानों में काम कर सकें, यूथ में काम कर सकें, यूथ को उभारें और यूथ खुदावन के साथ मुकम्मल तौर पर खुदावन के साथ वफादार हो सके। क्योंकि इब्लीस के अटैक जो हैं वो यूथ पे ज़्यादा होते हैं और तबाह बर्बाद, नशे की हालत में, नशे की सूरत में और भी बड़े मसाइल हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं। तो हम इस बात के लिए दुआ करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आंटी नसरीन से ही कि वो इस बात के लिए दुआ करें कि खुदावन हमें इस्तेमाल करे इस बात के लिए, दुआओं के ज़रिए से हमें खुदावंद इस्तेमाल कर सके, ताकि हम दुआ में झुके रखने में खड़े हो सकें। और यूथ के लिए दुआ करें कि खुदावंद
यूथ को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सके। जी, हमारे साथ फ्रोबल है, भाई फयाज हैं, फ्रोबल हैं। तो मैं कहूँगी कि ये छोटी-छोटी सी दुआ करें नौजवानों के लिए, तो फिर उसके बाद मैं दुआ करती हूँ। भाई फयाज और फ्रोबल हैं और फिर भाई सिद्दीक हैं। आप छोटी-छोटी सी दुआ जो वो नौजवानों के लिए दुआ करें। जी, तो फ्रोबल के साथ मिलकर हम नौजवानों के लिए दुआ करें। खुदावंद लश्करों की खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तो बारहा वक्त बख्शता है खुदा कि हम मिल के तेरे नाम की सताइश करें खुदावंद। यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा कि तूने हमें चुना है खुदा, तूने हमें लग किया है खुदा कि तेरे लोगों के लिए शफायत करें खुदावंद, तेरी खोई हुई भेड़ों को तेरी हुजूरी में लेके आए यीशु के नाम में खुदा। जब हमारा मोटिव है खुदावंद कि हम तेरी खोई हुई भेड़ों को तेरी हुजूरी में लेके आए, जो नौजवान खुदा नशे की हालत में है खुदा, जो ज़नाकारियों में जकड़े हुए खुदावंद, जो बेरारवी का शिकार है, जुबे की लानतों में, यीशु के नाम में खुदा तेरी हुजूरी से खुदा तेरे पाक रूह की गाइड मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, ताकि हम उनको तेरी हुजूरी में लेके आए खुदावंद। हमें हिकमत दे खुदावंद के तेरे कलाम की बातों को शेयर करें खुदावंद, ताकि तेरी बहुत से लोगों को तेरी हुजूरी में लेके आए खुदावंद यीशु के नाम में खुदा। सारे इस प्रोसेस में तो हमारे साथ होना खुदा, हमारे ज़हन दिमाग सोचो ख्यालों को खोलना खुदा, ताकि तेरे बच्चों को तेरी हुजूरी में लाने वाले बन सकें खुदावंद। ये मांगता हूं कि खूबसूरत जलाली पाक बेहतर नाम से, आमीन। आमीन। आमीन आमीन। अभी अंकल फयाज इस बात के लिए दुआ करें, यूथ के लिए। तब आप द बेटे तरुल कुस सुनासी दे खुदान, हम यूथ के लिए दुआ करते हैं खुदान, तेरा हाथ बढ़े और उनको अपनी तरफ खींचे खुदान। जब तक तू नहीं करेगा तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। हम तेरा फजल मांगते हैं, तेरा तरस मांगते हैं यीशु मसीह। और खुदान, एक वालिदैन होने की हैसियत से हमें चाहिए कि हम अपनी अपनी ड्यूटी करें, अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि उनको एक कलीसिया का मेंबर बनाते हुए तेरे कदमों में लाएं। और जबकि हम कलीसिया में जब शामिल होते हैं, एक मसीह खानदान में शामिल होते हैं, तो हम ये वादा करते हैं कि हम इन बच्चों की तरबियत तेरे आइन के मुताबिक, तेरी शरीयत के मुताबिक और कलीसिया के कवानीन के मुताबिक करेंगे। खुदा पाक खुदा तौफीक दे कि हम अपनी इस जिम्मेदारी को निभा सकें। इस अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को खुदावंद के पास ला सके। जब हम अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो फिर हम दूसरों की तरफ भी जाएंगे खुदावंद, ताकि ऐसे नौजवान जो हमारी कलीसिया में है, हमारे गली मोहल्लों में है, हमारे गांव में है, हमारे गिरदोनवा में है, उनको हम तेरे हुजूर ला सके खुदावंद। जब हम अपनी जिंदगियों से एक अच्छा नमूना पेश करेंगे, तब भी खुदावंद यूथ भी हमारी तरफ राग़ब होगी। खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम यूथ को अपनी जिंदगियों का नमूना देते हुए तेरे तख्त के सामने तेरी सलीब के नीचे ला सकें। और खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ अपने बच्चों के लिए, और जितने हम इस वक्त जूम मीटिंग में बैठे हैं, खुदावंद ईमान की मजबूती दे। जबकि हम गैर कौमों में रहते हैं, गैर कौमों के साथ काम करते हैं, बहुत सारी दुनिया पर कौमें हैं जिनके दरमियान में हम रहते हैं खुदावंद। इसी तरह इब्लीस जो है, जिस तरह के कलाम में फरमाया गया है, आज तेरी खादमा ने कहा है कि इब्लीस जो है, शैतान जो है, वो यूथ पर अटैक करता है, वो यूथ को वर्गलाता है, वो यूथ को परगंदा करता है। लेकिन हम खुदावंद तेरे आगे झुकते हैं, मिन्नत करते हैं, यूथ जो है खुदावंद तेरे कदमों में है, शैतान का इब्लीस का मुकाबला करे। और खुदावंद हम इब्लीस को पांव के नीचे रखते हैं, शैतान को पांव के नीचे रखते हैं। और खुदावंद पाक खुदा तू यूथ को बड़ी बरकत दे, तेरा पाक रूह उनकी जिंदगियों में काम करे खुदावंद। वो तेरे जलाल को देखें, तेरे पाक रूह को देखें यीशु, उनकी जिंदगियों में मौजूद कर, ताकि वो तुझे पहचान सके कि यही जिंदा खुदा है, यही निजात दिंदा है, यही यीशु मसीह नासरी है। हम सब के साथ हो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। अभी हम पास्टर सिद्दीक साहब के साथ
खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम मिल करके खुदावंद नौजवान नस्ल को बर्बादी से बचा सके। खुदावंद हम कैसे ये काम कर सकते हैं मिल करके खुदावंद, जब हम मिल करके इस नौजवान नस्ल को तेरी हुजूरी में रखेंगे तो खुदावंद यकीनन तू काम करेगा इन जिंदगियों में। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू बाप है, तू अपने लोगों की दुआओं पर अपने कान को लगाए रखता है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे आगे करते हैं, फरियाद करते हैं खुदावंद पाक खुदा, अपने हाथ को बढ़ा खुदावंद, नौजवान नस्ल को बर्बादी से खुदावंद, तबाही से बचा खुदावंद, जो तरह तरह की मुश्किलों से खुदावंद पाक खुदा तुझसे दूर हो चुके हैं खुदावंद, हम मिल करके उसे तेरी हुजूरी में लाते हैं खुदावंद। कुदस पाक खुदा, हम कमजोर हैं, तू हमें जोर बख्श, दिलेरी का रूह बख्श, हिकमत का रूह बख्श खुदावंद, ताकि हम अपने बेटे बेटियों को बचा सके खुदावंद। तेरे कलाम की रूह से खुदावंद हम तेरे आगे मिन्नत करते हैं, तू उनको छू, बरकत दे, सलामती दे, तंदुरुस्ती दे, बहाली ला, ताजगी ला, बेदारी ला, जो जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं तेरी तरफ लौटे खुदा, ताकि वो बर्बादी से बच सके खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं नौजवान नस्ल के लिए खुदा, जो तबाही की तरफ जा रही है खुदा, उनको हम मिल करके तेरे करीब लाने का सबब ठहरे खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, अपने हाथ को बढ़ाए रखो खुदा। तेरा कलाम फरमाता है, थके मांदे बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। खुदा जब तेरे पास आते हैं, तेरी तरफ आते हैं खुदावंद, यकीनन तू हमारी दुआओं पर अपने कान को लगाए रखता है। खुदा पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इस सारे वक्त को तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद। मेहरबान बाप, तू अपने लोगों की दुआओं को सुन खुदावंद, बरकत दे, सलामती दे, आप इस नौजवान नस्ल पर तेरा हाथ बढ़ा रही है खुदावंद, ताकि तबाही से बर्बादी से बच सके खुदावंद। जो बेरादरी का शिकार हो चुके हैं खुदावंद, तेरी तरफ लौटे खुदावंद, तुझे पहचाने खुदावंद, कि तू ही हमारा निजात दहिंदा जिंदा खुदावंद है। खुदा पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे पास लाते हैं खुदावंद, अपने हाथ को बढ़ा, इन जिंदगियों को छू, बाबरकत कर, अपनी हुजूरी में आने का बारी फजल बख्शे। तेरा फजल ही हम सब के लिए काफी है, जो हमें संभाले रखता है, बरकत देता है, कुव्वत देता है, दिलेरी देता है, हिकमत देता है, ताकि हम अपनी जिंदगियों को बचा सके, अपनी औलाद को बचा सके। खुदावंद पाक खुदा, जो बर्बाद हो रही है अबलीस के हाथों में खुदावंद, अबलीस शर्मिंदा हो जाए खुदावंद, अबलीस शर्मिंदा हो जाए, ताकि तेरे नाम को फतह मिले, क्योंकि तू फतह मंद का है, हमारा हुजूर खुदा है, तू सारे कहर को ठंडा करने वाला मालिक खालिक है। तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे आगे मिन्नत करते, फरियाद करते हैं खुदावंद, तू अपने लोगों की दुआओं पर अपने कान को लगा, बरकत दे, अपना हाथ बढ़ा करके छू, ब्लेस कर खुदावंद, अपने जलाल और गवाही के लिए इस्तेमाल कर खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे फाटकों में ठहरे रहे खुदा, मिल करके तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तुझे दान कहते हैं खुदावंद, कि तू हमारा अजीम खुदा, कदूस खुदावंद, मेहरबान खुदावंद, रहम तरफ से भरा हुआ खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे पास आते हैं खुदावंद, हम कुछ भी नहीं है, निकम्मे हैं, हकीर हैं, गुनाहगार से है, लेकिन तेरा जोर, तेरा फजल मांगते हैं, जो हमें ताकत देता है, दिलेरी देता है खुदावंद, कि हम अपनी औलाद को, नौजवान नस्ल को बचाने का सबब ठहरे खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू हर वक्त हमारे साथ रहना, हमारा उठना बैठना बोलना चालना तेरी ही मर्जी के मुताबिक हो खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस बात की खुदावंद कि तूने आज हमारे ज़हनों को खोला, ताकि हम अपनी औलाद पर, नौजवान नस्ल पर ध्यान दे सके खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, इनको बचाने का सबब ठहरे, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। मसीह का खूबसूरत जलाली बाबर का नाम लेकर तेरी हुजूरी से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मारिया आप दुआ करें। जी जी, आसमानी बाप, यीशु नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू अजीम, तू जलाली है, तू पाक है खुदा,
तेरे हुजूर में आते हैं नौजवान नस्ल के लिए जो कि बलूगत के दौर में है खुदा, नौजवानी के इस टाइम में खुदा अपने बच्चों के साथ हो, और वालिदैन के लिए स्पेशली दुआ करते हैं ताकि वो उनके साथ हिकमत से पेश आए, और खुदावन इस सारे टाइम में तू अपना हाथ बढ़ा खुदावन, ताकि तेरे लोग, तेरे खुदावन ममसू जो हैं वो खुदावन वो इस काम में आगे बढ़ सकें, और खुदावन लोगों को गाइड कर सकें, वालिदैन को गाइड कर सकें, नौजवानों को गाइड कर सकें खुदावन, तेरी हिकमत, तेरी अकल से खुदावन जो आसमान से आती है उसको लेते हुए सारे काम में खुदावन लोगों को खुदावन की रहनुमाई कर सकें, ताकि खुदावन नौजवान नस्ल बच सके, नौजवान आजाद हो सके, बहाल हो सके, हर किस्म की लानत से खुदावन आजाद हो सके, इब्लीस के सारे मंसूबों से आजाद हो सके, उस पर गर्व हो सके खुदावन, हाथ बड़ा निजात का काम हो, बहाली का काम हो खुदावन, और खुदावन नौजवान नस्ल खुदावन तेरे साथ खुदावन जुड़ सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। हम सारी बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इसी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदा कदूस आमीन। रब्बुल फाज, हम खुदावन तेरी हजूरी में आते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं। बेशक खुदावन तू जो कादे मतलब खुदा है, बेशक खुदावन तू नौजवानों से मोहब्बत रखता है, बेशक खुदावन तूने हमें खड़ा किया है कि हम तेरी नौजवान नस्ल को खुदावन इस बीमारी से, इस लानत से, इस परेशानियों से, इस दुखों से, तकलीफों से हम उन्हें निकाल सके। बेशक खुदावन अबलीस जब हमें जकड़ता है खुदावन तो हमें दुख देता है, हमें तकलीफ देता है, हमें जिस्मानी तौर पर कमजोर करता है, हमारे बदन को कमजोर करता है, ताकि खुदावन जो तेरा मकदस है खुदावन वो खुदावन ठीक ना रह सके, वो बीमारियों में, नशे में और दूसरी लानतों में हमारा बदन जो है वो जकड़ा रहे। खासतौर पर नौजवान नस्ल खुदावंद हम उसको आज तेरे हजूरी में लेकर आते हैं लश्कों के खुदावंद, जो तूने हमें बोझ दिया है खुदावंद, इस बोझ के मुताबिक खुदावंद हम तेरी हजूरी में आते हैं, हम तेरी सब मिलकर मुत्फिक होकर खुदावंद हम इस बात पर मुत्फिक हैं खुदावंद कि तू हमें नौजवान नस्ल दे खुदावंद, तो हमें दे खुदावंद, हमें ऐसे लोग दे खुदावंद जो तेरे कलाम से मोहब्बत करने वाले हों, ऐसे लोग खुदावंद हमारे साथ खड़े कर खुदावंद, जो लोग खुदावंद हमारे साथ मिलकर खुदावंद उन लोगों के लिए हम काम कर सके, उस यूथ के लिए काम कर सके खुदावंद जो दलदल में है, जो गुनाहों में है, जो नशे की हालत में है, जो और परेशानियों में है खुदावंद हम उनको निकाल सके। दर्शकों के खुदावंद अपने लोग हमें मुहैया कर, नौजवान नस्ल हमें मुहैया कर खुदावंद, चाहे वो किसी भी टैलेंट से हो, किसी भी नेमत से खुदावंद वो भरे हो खुदावंद, जो तेरी पाक रूह की नेमतें हैं खुदावंद उनसे भरे हो खुदावंद, और खुदावंद तेरी हिकमत से भरे हमें नौजवान खुदावंद, क्योंकि हम खुदावंद सारे मिलकर तेरा बदन बन सके खुदावंद, ताकि हम अपने अपने हिस्से का काम कर सके खुदावंद, इसलिए कि खुदावंद हर एक बदन के हिस्से का काम मुख्तलिफ है खुदावंद, इसी तरह से हम सब जो मुख्तलिफ काम करने वाले, मुख्तलिफ नेमतें रखने वाले लोग हों खुदावंद, वो हमारे साथ जुड़े खुदावंद, वो हमारे साथ मिले खुदावंद, ताकि खुदावंद हम अपनी अपनी उस नेमत को इस्तेमाल करते हुए, अपने अपने उस तोड़े को इस्तेमाल करते हुए खुदावंद हम और ज्यादा खुदावंद तेरे लिए खुदावंद लोगों को चुन सके, खुदावंद लोगों को बचा सके खुदावंद, एक सिक्के से हम ज्यादा सिक्के बना सकें और खुदावंद तोड़े बना सके लश्कों के खुदावंद, तो हमें हिकमत से भर, हमें फहम दे, हमें समझदारी दे, हमें नौजवान नस्ल को खुदावंद आगे लेकर चलने की खुदावंद हिकमत दे, हमें फजल बख्श खुदावंद, होली सिटी मिनिस्ट्री को खुदावंद, इस प्लेटफॉर्म को खुदावंद बरकत दे खुदावंद, लिविंग होली स्पिरिट को खुदावंद ब्लेस कर, भाई फयाज को खुदावंद ब्लेस कर, उनके बच्चों को ब्लेस कर खुदावंद, और खुदावंद हम सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं खुदावंद, हनूक हैं, उसकी मिसेस है खुदावंद, प्रोबल है खुदावंद, और मारिया को खुदावंद, और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स, भाई कमर हैं खुदावंद, और नौजवान नस्ल यूथ जो जो खुदावंद हमारे साथ चलती है खुदावंद, हम उन सब के लिए खुदावंद तेरी ब्लेसिंग चाहते हैं खुदावंद, और एक बार फिर खुदावंद हमें खुदावंद अपनी बरकतों से भर, हमें खुदावंद अपने फजल से घेरे रख रश्कों के खुदावंद, और हमारी औलाद को खुदावंद हमारे साथ खड़ा कर, हमारी औलाद हमारे साथ खड़ी हो खुदावंद, वो खिदमत में बढ़े खुदावंद, और खुदावंद दिलेरी और जुर्रत के साथ खुदावंद हमारे साथ खड़े हो लश्कों के खुदावंद, और नौजवान नस्ल चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है खुदावंद, तो हमें फ्राहम कर, हमें मुहैया कर खुदावंद, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद तेरे कलाम के खुदावंद
बढ़ाई के लिए, तेरे कलाम के खुदावंद उसके फैलाव के लिए खुदावंद हम काम कर सकें लश्कों के खुदावंद, ताकि तेरा कलाम खुदावंद दुनिया में खुदावंद एक रिवाइवल लेकर आए। तेरा कलाम खुदावंद जिंदगियां तब्दील करे लश्कों के खुदावंद। ऐसे लोग खुदावंद हमारे साथ मुहैया कर जो मुखलिस लोग हो, जो तेरे साथ वफादार हो खुदावंद, और तेरी नेमतों से भरे हो खुदावंद, तेरे कलाम से भरे हो खुदावंद, तेरी कुदरत से भरे हो, तेरी खुदावंद वर्शिप से भरे हो खुदावंद। खुदावंद हर एक खुदावंद तोड़ा जो तूने उनको दिया है खुदावंद, हम उनको मिलकर खुदावंद इस्तेमाल कर सके लश्कों के खुदावंद। और लश्कों के खुदावंद, क्योंकि तू दिलों के भेद जानता है, और तूने बेशक खुदावंद तूने चुन रखे हैं वो नौजवान, हम नहीं जानते, लेकिन तू जानता है कि तूने कौन कौन से नौजवानों को चुना है खुदावंद इस काम के लिए, इस मकसद के लिए खुदावंद। इसलिए खुदावंद जिनको भी खुदावंद तूने चुना है खुदावंद, तू उनको सामने लेकर आ, उनको हमसे मिला खुदावंद, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदावंद। और सारी खुदावंद इस मीटिंग को, होली सिटी मिनिस्ट्री को खुदावंद, इस प्लेटफॉर्म को खुदावंद ब्लेस कर खुदावंद, हमारे यूट्यूब चैनल को ब्लेस कर खुदावंद, ज्यादा से ज्यादा लोग खुदावंद उसको देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खुदावंद तेरा कलाम पहुंचे खुदावंद, हमें ब्लेस कर खुदावंद। और खुदावंद हमें जिस मकसद के लिए तूने खड़ा किया है खुदावंद, उस मकसद को हमारी जिंदगी में पूरा कर, हमें सारे वसाइल को मुहैया कर खुदावंद, हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े खुदावंद जब हम सब मिलकर खुदावंद तेरी खिदमत कर सके, जैसे इब्तदाई कलीसिया में होता था खुदावंद, हर शख्स अपने अपने हिस्से का काम करता था। अब भी हमें बरकत दे, हमें ब्लेस कर, और खुदावंद ताकि हम अपने अपने हिस्से का काम कर सकें, जो जो काम तूने हमारे जिम्मे लगाया हम इस पूरा कर सकें। हम एक बार फिर अपनी नौजवान नस्ल को, खासतौर पर पाकिस्तान में बसने वाली यूथ को खुदावंद हम तेरे पाक हाथों में देते हैं। बेशक खुदावंद वहां पर बहुत सारी ऐसी यूथ है खुदावंद जो तुझसे मोहब्बत करती है, तेरे जोश से भरी हुई है, तेरे कलाम से भरी हुई है, तेरे वर्शिप से भरी हुई खुदावंद यूथ है। लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसी यूथ है खुदावंद जो कि अभी भी खुदावंद तुझसे दूर है, अभी भी तारीकियों में है खुदावंद। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तू हमें फजल बख्श, उस यूथ को खुदावंद हम इस्तेमाल कर सकें जो तुझ में बढ़ती है, जो तुझ में है खुदावंद, और उस यूथ के लिए काम कर सकें जो तुझ में नहीं है, जो तुझसे दूर है, जो तारीकियों में है, जो अबलीस ने जिनको जकड़ा हुआ है, हम उनको निकाल सकें, ताकि हम अब खुदावंद अबलीस के सारे मंसूबों को फेल कर सके खुदावंद। हम यूथ के लिए जो है उसको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकें, यूथ के लिए खुदावंद एक हम जो है उनके लिए हम कुव्वत और दलेरी और उनके लिए हौसला अफजाई का बायस बन सके खुदावंद, हम उनको हौसला दे सकें, वो आगे बढ़ सकें खुदावंद, ताकि खुदावंद तू हमें जिस काम के लिए तूने खड़ा किया है उसको हम कर सकें खुदावंद, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन आमीन। अब हम यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें, और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न पड़ने दी, बल्कि मैं बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से तेरी है। आमीन। बरकत को कलमात पास्टर सदीक साहब के साथ। वालिद साहब सुन रहे हैं? अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की शराकत और फाकत जो किसानों के साथ और खुदा तेरे ईमानदार लोगों के साथ, तेरी कौम बनी इसराइल के साथ, मुल्क पाकिस्तान की सालमियत और बका के साथ, और कुल कायनात के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक कायम रहे। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। आमीन।